Hello students, my name is Manpreet Singh and today this is the online lectures for the first year students of R&D Center for Bicycle and Swing Machine Ludhiana, and this is the lecture number 4 and today for the subject engineering drawing, and today our topic is scales, units and RF. RF means representative fraction. Today we will discuss about the very important topic, that is scales. ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਲਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਡਰਾ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ देयर एक्चुअल ਸਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੇ ਟੂ ਬੀ ਆ ਟੂ ਲਾਰਜ on the drawing sheet or too small to draw and cannot be effectively used in the shop floor। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਆ, ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ, 1 ਇੰਚ ਆਫ ਅ ਮੈਪ ਕੁਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ। ਫॉर एग्जाम्पल कि ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਨ ਰੀਅਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਆ ਮੈਪ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ with the help of scales ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Scale is the ratio. Scale is the ratio between the linear dimensions. It may be a length or a size of a drawn representation of an object and the actual object. For example ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ actual object ਕੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੀਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕੇਲਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੇਲਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕੇਲਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਵਰਡ ਸਕੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉलोड ਬਾय ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੇਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੀ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੇਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਅਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ ਹੈ। ठीक है, जे तो स्केल 1:1 होवे तो मीनस है फुल साइज स्केल या आपां उहनूं कह दिंदे आ इक्वल साइज स्केल हुंदे है। ठीक है जी, जे ਉਹ ਕੀ है x ग्रेटर दैन 1 होवे तो अनलार्जमेंट स्केल होगी, जे x लैस दैन 1 होगी तो वह रिडक्शन स्केल होगी। ठीक है, जिवें हुण इत्थे आपां अनलार्जमेंट स्केल्स दे विच की हुंदा 2:1 3:1 5:1 इस तरह के जे आपां फैक्टर्स एक्स नूं आपां इनक्रीज करते जावांगे तो अनलार्जमेंट स्केल होगी। जे आपां इत्थे एक्स नूं इत्थे की होगा 1:2 1:3 1:5 तो ये की है रिड्यूसिंग स्केल होगी। ठीक है, ड्राइंग स्केल इज अ कॉमनली फाउंड इन टाइटल ब्लॉक। आपां जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि आपां एक टाइटल ब्लॉक दे विच भी स्केल नूं जरूर मैंशन करते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर अ डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, तो आपां की है एक किसी नूं भी ड्राइंग नूं अंडरस्टैंड करने लई आपां ओहदा स्केल जरूर मैंशन करते हैं। Drawing scales notes dimension number shown in the drawing represent the true size of an object. They are independent of the drawing scale used. ठीक है जी, उस तो बाद की आ जाता देयर आर अपने कोल किन्ने तरह के स्केल्स ने। देयर आर टाइप्स ऑफ स्केल्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अपने कोल 6 तरह के 6 टाइप्स ऑफ स्केल्स विच आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। नंबर 1 is plane scale, diagonal scale, comparative scale, vernier scale, scale of chords and isometric scale। ਤੇ ਜਿਹੜਾ वर्नियर scale ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ scales ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, forward scale ਤੇ and backward scale। मतलब ਇਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੋ टाइप्स ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ scales ਹੀ ਨੇ, प्लेन स्केल ते डायगोनल स्केल। इस दे उत्ते क्वेश्चंस आउंदे आ या तां ईदर 5 और 10 मार्क्स दे विच ये क्वेश्चंस थोड़े एग्जाम्स दे विच ड्रॉ करने लई आउंदे ने। ठीक है जी, टू ड्रॉ दी स्केल्स वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। जदों भी आपां स्केल्स नूं ड्रॉ करना तां आपां नूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दी लोड़ पैंदी है। ठीक है, वो कड़े दो पैरामीटर्स हुंदे ने। एक दो पैरामीटर्स आपां यूज करते हैं जिहड़े आपां ड्रॉ करने लई यूज करते हैं। नंबर 1 इज दी यूनिट्स, नंबर 2 इज दी RF वैल्यू। ये दो चीज़ां जिहड़ियां आपां नूं चाहीदियां हुंदियां ने जिहड़े आपां एक स्केल नूं ड्रॉ करने लई शीट दे उत्ते यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। मैं तुहानूं दसदा कि दो तरह के पैरामीटर्स ने। एक तो अपने कोल यूनिट्स हो गए, एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिन्होंने आप शॉर्टकट फॉर्म दे विच RF भी लिख लेने हैं। ठीक है जी, उस तो बाद देयर आर हुण आपां यूनिट्स की गल करते हैं कि यूनिट्स किन्ने तरह के हुंदे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड, मैट्रिक सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है जी, मैट्रिक सिस्टम दे विच अपने कोल जिहड़े आ मैट्रिक सिस्टम अपने कोल दिता होया है। इस दे विच अपने कोल मैट्रिक सिस्टम दे विच जिवें mm 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर एंड 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 1 लाख स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने कोल की है यह पूरा एक मैट्रिक सिस्टम का चार्ट है जो थोनू की है यह इसनू जरूर याद कर लेना। ठीक है जी, रिमेंबर दिस मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, इसनू ये जड़े की अगे जे थोनू ये कन्वर्जनस नहीं होंदियां तां बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगे जदों आपां सम्स नू सॉल्व करना। तां इसलिए तुसी की है इसनू
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ इसनू ਜ਼ਰੂਰ याद कर लेना, क्योंकि ये अपने मेनली की है ਜਿਹੜਾ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होना। नैक्सट आ गया अपने कोल ब्रिटिश सिस्टम। आ ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फुट इंचेस यार्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। देखो ਜਿਹੜਾ फुट है वो की है सिंगुलर है, ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਲੂਰਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਟ ਤੇ ਫੀਟ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੀਟ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੀਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਯਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, 3 ਯਾਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਫਰਲੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, 8 ਫਰਲੋਂਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ 2.54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇੰਚ, ठीक है, 2.54 इज इक्वल टू 1 इंच ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੋ ਇੰਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ, so it is not come under the British system, but you have to remember 1.24 centimeter is equal to 1 inch। नैक्सट आ गया अपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जिमें कि है आप कन्वर्ट करना, 10 किलोमीटर दिता होया वा, इनू आप सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करना वा, ठीक है। तो सब तो पहला आपां नूं देखना पैना कि एक किलोमीटर दे विच किन्ने आपां कन्वर्जनस तक लै सकते हैं। जिमें 1 किलोमीटर दे विच आपां नूं पता 1000 मीटर हुंदा है, ठीक है। 1 मीटर दे विच किन्ने हुंदे आ, 100 सेंटीमीटर हुंदे आ। तो आप की करांगे 10 इंटू 1000, ये मीटर दे विच कन्वर्ट हो गया। इत्थे जे एक आप 100 नाल होर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा। तो आप इनू की लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 सेंटीमीटर। तो ये की है 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 सेंटीमीटर इज दी आंसर, या आप इनू 10 रेज़ टू दी पावर 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोनू जड़ियां कन्वर्जनस आ बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। इनू ਜਿਹੜੇ आ 2 स्लाइड्स ने ब्रिटिश सिस्टम ते मैट्रिक सिस्टम, इन्हां नू ध्यान नाल तुसीं याद कर लेना ते इनू पेपर दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये थोनू जड़ियां कन्वर्जनस जरूर पता होनियां चाहिए ने, ठीक है जी। नैक्सट जिवें एक होर आपां सम कर लैंदे हां, जिवें कि है 100 मीटर दिता होया, आपां उहनूं डेसीमीटर दे विच कन्वर्ट करना, ठीक है जी। हुण आपां नूं इन्ना पता होना चाहिए कि एक मीटर दे विच किन्ने डेसीमीटर हुंदे ने। 1 मीटर दे विच 10 डेसीमीटर हुंदे आ, ठीक है जी। तो आपां उहनूं डेसीमीटर दे कन्वर्ट करना वा, ते 100 मीटर दिता होया ते उहनूं मैं डेसीमीटर दे विच कन्वर्ट करूँगा तो 10 नाल मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे को कितना आ जाऊगा 1000 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसनूं तुसीं कन्वर्जनस ते थोड़ी जी प्रैक्टिस करियो, ठीक है। तुसीं अपने आप थोड़े जे क्वेश्चनस अपने आप नूं ही पुट करके थोड़े जे सॉल्व करके देखियो, तो तुहानूं ये सारी जिहड़ी कन्वर्जनस है ये बिल्कुल क्लीयर हो जाणगीआं ते उसनूं तुहानूं ईजीली जदों भी अपना प्लेन स्केल ते डायगोनल स्केल्स ते क्वेश्चन सॉल्व करांगे तो उस दे विच तुहानूं डिफिकल्टी नहीं आऊगी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, जिवें हुण एक आपां ब्रिटिश ते भी कर लैंदे हां कि 7 यार्ड इज नूं आपां इंचिस दे विच कन्वर्ट करना, ठीक है। 7 यार्ड्स नूं आपां इंचिस दे विच कन्वर्ट करना, तो आपां की करांगे 7, फिर यार्ड्स तो इंचिस ते यार्ड दे विच किहड़े-किहड़े यूनिट आ जांदे आ। एक तो फीट होंदा, पहला की आऊगा यार्ड, यार्ड तो बाद फुट, ठीक है, फुट तो बाद इंच। तो अपने कोल की है आपां यार्ड टू फुट तक जाना, तो अपने कोल इंच तक जाना, ठीक है। अपने कोल विच फुट भी आ रहा है ते इंच दे विच तो आपां कन्वर्ट करना ही करना, ठीक है। 7 यार्ड, हुण आपां नूं इन्ना पता कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 1 यार्ड कितना हुंदा वा, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, ठीक है। ते 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, ठीक है। तो आपां की करांगे 7 इंटू 3, इत्थे फुट की जगह 3 फीट 10 इंचिस 12,
ठीक है। ये कितना आ जाऊगा अपने को 7 × 36 36 ये 42 आ गया, 4 उत्ते 21 252 इंचेस अपने को आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी। तो यह तुसी कन्वर्जनस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ने ते उन्होंने याद करके रखना है। जिवें एक क्वेश्चन आपां होर लै लैने हैं 10 फरलॉन्ग, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਰਲੌਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰਡ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਲੌਂਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰਡ ਤੋਂ smaller unit is feet, next इंच तो बाद सेंटीमीटर। वो मैं थोनू दसिया कि 1 इंच दे विच 2.54 सेंटीमीटर होंदे ने। हुण जिवें 10 फरलॉन्ग है, 10 फरलॉन्ग यार्ड किन्ने आपां करांगे इत्थे 10 फरलॉन्ग is equal to 3 yard into 3 feet into 12 inches into 2.54 सेंटीमीटर। इस जो भी तुसी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये देखो 30 30 इंटू 90 90 इंटू 12 इंटू 2.54। इसनों कैलकुलेट करके थोड़ा जड़ा सारा लास्ट दे विच जड़ी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर दे विच आएगी। ठीक है। इसनों कैलकुलेट कर लेना ते थोड़े जे अपने आप में होर क्वेश्चन पुट करके देखना कि थोड़ी प्रैक्टिस वधिया हो जाए। एंड वो तो अपना फर्स्ट पैरामीटर सीगा यूनिट्स। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज RF। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज RF। The ratio, it is the ratio, basically RF is the ratio of the length in the drawing to its corresponding length of a object. When both lengths are in same unit, it is called the representative fraction. Here RF is expressed as the fraction. Fraction की होंदी है जिमें x/y is called the fraction, जिमें 3/9 is called fraction, 1/3 is called fraction। ठीक है। 5/10 is called fraction। This is number in form of x/y is called the fraction। ठीक है। उन्होंने आप फ्रैक्शन कह देने हैं। तो अपने को RF का एक फॉर्मूला है जड़ा तुसी की याद रखना है। ठीक है। दैट इज द साइज ऑफ कंपोनेंट इन द ड्राइंग ओवर द एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट। या आप RF नू एक भी लिख सकते हैं LOD ओवर और LOS डिवाइडेड बाय AL और ML। ये मैं थोनू दस देना। LOD इज द लेंथ ऑफ ड्राइंग, LOS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल। तुसी कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चंस दे विच जदों भी ये वर्ड्स, क्योंकि ये मैं थोनू दस रहा कि वो थोनू LOD लेंथ ऑफ ड्राइंग भी दे सकता है, वर्ड लेंथ ऑफ स्केल भी दे सकता है। AL इज द एक्चुअल लेंथ, AL इज द एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल साइज भी आप कह सकते हैं। तो ML इज द मैक्सिमम लेंथ, आप मैक्सिमम लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जड़े की है तुसी जरूर एब्रीवेशंस जरूर याद रख लियो। तो ये की है जड़ा RF इज दी रेशो है। तो रेशो हमेशा की है यूनिटलैस होंदी है, ये कोई यूनिट नहीं होंगे। नो यूनिट्स नो डायमेंशन, डायमेंशनलैस भी होंदी है तो यूनिटलैस भी होंदी है। नो डायमेंशन और एंड नो यूनिट्स। ठीक है। तो ये की है थोनू RF की डेफिनेशन जरूर मतलब याद करके रखनी है, क्योंकि ये जो भी आप प्लेन ते डायगोनल स्केल्स के क्वेश्चंस नू सॉल्व करांगे तो आप सब तो पहला कैलकुलेट जड़ा फैक्टर करना वो RF ही करना वा। ठीक है। वो मैं थोनू अगे दसूंगा कि RF किवें कैलकुलेट करना है, एक्चुअल लेंथ किवें कढ़नी है, जे RF दिता होवे तो मैक्सिमम लेंथ किवें कढ़नी है। ठीक है। ये सारा की है आपां उहदे विच जदों भी आपां
ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। The term scale implies either RF or a measuring device itself made for a particular RF. RF has two elements, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ RF ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ X/1 ਜਾਂ 1/1 ਜਾਂ 1/X। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ X/1 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1/X ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਨਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1/1 ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ। मतलब ये तीन तरह के स्केल्स ने। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 1। ਆਪਾਂ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ x ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ x ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਨਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, जे x पिछे आ जाए तो वह रिड्यूसिंग स्केल हो जाऊगा। ठीक है, इतने लार्ज स्केल आ गया ते आ जड़ा अपना रिड्यूसिंग स्केल आ गया। ठीक है, ये ध्यान देख लियो कि जे x पिछे होवे तो रिड्यूसिंग स्केल, जे x अगे होवे तो अनलार्ज स्केल होगा। जे 1/1 दे विच दिता होया तो जिहड़ी डायमेंशन तुहानू एक्चुअली है, तुसी एक्चुअली ही शीट ते बना रहे हो, तो वह की है इक्वल साइज स्केल हो जाऊगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जिमें RF 1/5, 1/22, 10/1, 150/1 मीनस आ की दिता होया, ये की है, ये सारे की है रिड्यूसिंग स्केल्स ने। ठीक है, इथों आ दो जड़े हैगे ये रिड्यूसिंग स्केल्स नू रिप्रेजेंट कर रहे ने, ते जड़े अगे वैल्यू जिमें हुण इत्थे 10/1, 10 is greater than 1, so it is a enlarged scale. 150/1 means 150 greater than 1, so it is a enlarged scale. 1/5, 1 is less than 5, 1 is less than 5, so it is a reducing scale. ठीक है, जे तो पिछे अपने फैक्टर वड्डा आ जाए तो रिड्यूसिंग स्केल, जे अपने फैक्टर 1 तो वड्डा आ जाए तो वो की है अनलार्ज स्केल। फर्स्ट एलिमेंट इन द RF ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइज इन द ड्राइंग। जेड़ा भी पहला एलिमेंट हुंदा वो की है रिप्रेजेंट द साइज इन द ड्राइंग, while the second element represents the corresponding size of the object, means reducing, enlarge or equal size scales. Next, RF is considered as the base and scale is divided into three types. RF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ए बेस कंसीडर करके ਆਪਾਂ स्केल्स ਨੂੰ तीन तरह ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਗਿਆ, रिड्यूसिंग स्केल, इक्वल साइज स्केल एंड अनलार्ज स्केल। देखो आ स्केल की है 1/X, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रिड्यूसिंग साइज स्केल ਨੂੰ 1/X ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 1/2 ਲਾ ਦਈਏ, 1/5 ਲਾ ਦਈਏ, 1/3 ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ रिड्यूसिंग स्केल बन जाऊगा। जे आप 1/1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रखांगे तो वो फुल साइज स्केल। फॉर एग्जाम्पल जिमें मेरे को 100 की एक रैक्टेंगल आ गया, एक पीस ऑफ ब्लॉक आया, तो मेरी जी डायमेंशन है 100/100 की है, तो मैं इनू शीट पर भी 100/100 ही शो करता, तो ये मेरे को की आ गई फुल साइज इक्वल साइज स्केल आ गई। तो अनलार्ज स्केल जे X वड्डा, जिमें 2/1 आ गया, 3/1 आ गया, 5/1 आ गया, एक ही है अपने अनलार्ज स्केल दे विच आपां इसनू कंसीडर कर लेने। ठीक है जी, नेक्स्ट इज द रिडक्शन एंड अनलार्ज स्केल। रिडक्शन, the RF such as 1/3, 1/100 etc are the reduction scales and drawing made is smaller। जे ਆਪਾਂ रिड्यूसिंग स्केल यूज करते हैं तो जी अपनी ड्राइंग आप बनाने तो वह की है स्मॉल साइज दे विच हुंदी है, एंड दी स्मॉलर मेड इज स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट। मतलब जे ऑब्जेक्ट एडा वा तो आप ड्राइंग शीट दे विच छोटा शो करते हैं। हुण जे अनलार्ज स्केल्स दे विच जे ऑब्जेक्ट एडा तो आप उसनू वड्डा शो कर दिंदे हैं, तो अपने कोल की आ अनलार्ज हो जाती है। ठीक है, ते नाल आपां उहनूं
स्पेसीफाई कर देने हैं कि ये रिड्यूसिंग साइज स्केल यूज किया या अनलार्ज स्केल यूज किया। ठीक है जी। सिमिलरली RF such as 10:1, 150:1 etc. are the enlarged scales and drawing means are larger than the object। जिवें की है आ ऑब्जेक्ट है मेरे को एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनू मैं ए नाल शो कर देना एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ते जिहड़ा आपां ऑब्जेक्ट बनाया है यह लार्ज ऑब्जेक्ट बनाया। आ मेरे को एक्चुअल ऑब्जेक्ट सीगा, ठीक है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट सी तां मैं इहनू समॉलर साइज दे विच बनाया तां ये रिड्यूसिंग स्केल दे नाल बनाया। ठीक है, तां मैनू उत्थे स्केल जरूर मैंशन करना पऊगा कि ये 5:1 दे विच बनाया या 1:5 दे विच बनाया। ठीक है, अनलार्ज स्केल दे विच मैं यूज किया या रिड्यूसिंग स्केल दे विच यूज किया वा। ठीक है, मैनू लगदा तुहानू इत्थे तक अनलार्ज स्केल, रिडक्शन स्केल ते फुल स्केल दे विच बिल्कुल क्लीयर हो गया होना कि इस विच डिफरेंस की ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें अपने कोल करोना वायरस की गल ले लो, ठीक है, करोना वायरस किसी नूं भी नहीं दिंदा, ठीक है, फिर भी वो आपां नूं उसदी एक पिक्चर शो की हुई है। वो क्यों की हुई है? क्योंकि आपां नूं बिल्कुल नहीं दिख रहा कि अपने हत्थां ते करोना वायरस है कि नहीं। ठीक है, फिर भी आपां एक डर है कि करोना वायरस है। वो क्यों? ये किवें शो किया होया? इहनूं की किया होया? अनलार्ज स्केल दे विच शो करता। ठीक है, बिल्कुल एडा वड्डा शो करता कि उसकी एक पिक्चर आपां नूं उन्होंने शो करके दिखाती कि करोना वायरस इस तरह का कुछ दिखता वा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिवें आ बहुत वड्डा एक टरबाइन जनरेटर, जिवें कोल प्लांट हो गए, इलैक्ट्रिसिटी प्लांट हो गए, एरोप्लेन्स हो गए। आप एरोप्लेन्स नूं की है एक ड्राइंग शीट दे उत्ते शो करना, तो आप उन्होंने की करांगे रिड्यूस करके उसका पूरा जड़े जिवें आ टरबाइन जनरेटर सिस्टम है आप उसनूं की है पूरा एक शो करता। फॉर एग्जाम्पल जिवें कंडेंसर भी शो करता आपां, ठीक है, मेन ऑयल टैंक भी शो करता, टरबाइन भी शो करती, इलैक्ट्रिक जनरेटर देख लो किड्डा वड्डा हुंदा, फिर भी आपां इत्थे जनरेटर नूं शो किया होया ते इहदे विच स्टार्टर कॉइल्स भी शो करतियां। ठीक है, ते ये मतलब जो आपां एक वड्डी तो वड्डी चीज़ नूं छोटी करके दिखा देने आपां ओह की कह दिंदे आ रिड्यूसिंग स्केल दे विच, ते वड्डी तो वड्डी नूं छोटी तो छोटी चीज़ नूं आपां वड्डी करके दिखा दिंदे आ, आपां ओहनूं कह दिंदे आ अनलार्ज स्केल। ठीक है जी, ये हुण अनलार्ज स्केल की एक एग्जाम्पल होगी, आ एक होगी रिड्यूसिंग स्केल की एग्जाम्पल होगी। ठीक है, हुण मैनूं नहीं लगता तुहानूं कदे ये भुल्लूगी, क्योंकि आपां एग्जाम्पल ही कुछ इस तरह की ले ली। ठीक है, नेक्स्ट आगे देर आर डिफरेंट टाइप्स, देर आर डिफरेंट रिडक्शन स्केल्स आर रिकमेंडेड बाय BIS वाइड IS। ये अपने कुछ इंटरनेशनल सिस्टम्स होंदे ने जिहड़े बनाए ने कि आपां 1:2 यूज कर सकते हैं, 1:5 जिहड़े रिडक्शन स्केल्स ने, 1:100, 1:20 मतलब जिहड़े ये स्केल्स ने आपां ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ते जिहड़े अनलार्ज स्केल्स ने 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1, ये आपां जिहड़े हैगे आ अनलार्ज स्केल्स ये यूज कर सकते हैं आपां एक चीज़ नूं स्पैसीफाई करने लई। ठीक है, ये जदों भी आपां अजकल तो सॉफ्टवेयर्स दे विच की है इत्थे स्केल्स दे एक ऑप्शन आ जाती है, तो आपां उहदे विच स्केल्स तुहानूं सारे ही मैंशन होंदे ने। तुसीं 2:1 करना, 5:1 शो करना, या 10:1 शो करना, 20:1 शो करना, मतलब वो एक हुंदा वा तुसीं वो ड्राइंग ते व्यू ते क्लिक करके तुसीं उसका स्केल चेंज कर सकते हो। वो भी मैं तुहानूं जद अगे आपां सॉफ्टवेयर ऑटोकैड वगैरह करांगे तो उस दे विच तुहानूं ईजीली क्लीयर हो जाऊगा स्केल्स दे बारे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे अपने ड्राइंग स्केल स्टैंडर्ड, जिहड़े स्टैंडर्ड स्केल्स आपां यूज करते हैं वो हैगे आ, ये रिड्यूसिंग स्केल है 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100। मीनस इसका की मतलब हो गया 1:2, 1:5 ते 1:10, 1:20। जदों भी डिनोमीनेटर न्यूमीनेटर नालों वड्डा हो जाए तो अपने कोल रिड्यूसिंग स्केल आ जाती है। जदों भी
न्यूमीनेटर ग्रेटर दैन डिनोमीनेटर हो जाए तो वो की आ जाती है अनलार्ज स्केल आ जाती है। जे न्यूमीनेटर इज इक्वल टू डिनोमीनेटर हो जाए तो वो की आ जाती है इक्वल साइज स्केल अपने को आ जाती है। ठीक है, तो इसनों तुसी आ जरूर याद रखना कि जड़ी आर एफ है वो हमेशा फ्रैक्शनस दे विच हुंदी है एक्स ओवर वाई। ठीक है, तो जड़ी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ न्यूमीनेटर कह लैंने हैं, इनू डिनोमीनेटर कह लैंने हैं। ठीक है जी, तो जे डिनोमीनेटर ग्रेटर दैन न्यूमीनेटर होवे तो वो की है रिड्यूसिंग स्केल। जे न्यूमीनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमीनेटर दैन इट इज कॉल्ड अनलार्ज स्केल। जे दोनों बराबर हों तो आप इक्वल साइज या फुल साइज स्केल आप कह दें। ठीक है जी, मेन जड़ी ये याद रखनी है वो डेफिनेशन याद रखनी है आर एफ की। एक तुसी यूनिट्स नू बिल्कुल याद रखना ते ओदियां कन्वर्जेंस ते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने को टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल। जो भी अपने को स्केल ड्रॉ करना तो अपने को आ 3-4 चीज़ों का बहुत जरूरत पैंदी है, जिमें आर एफ ऑफ द स्केल, यूनिट्स विच रिप्रेजेंट एग्जाम्पल mm हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर, फीट, इंचेस एक्सेट्रा। कोई भी यूनिट हो सकते हैं या BS ब्रिटिश सिस्टम हो सकता है या मीट्रिक सिस्टम हो सकता है। और तुसी याद रखना कि ब्रिटिश सिस्टम दे विच कड़े यूनिट्स फॉल करते हैं तो मीट्रिक सिस्टम दे विच कड़े यूनिट्स फॉल करते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ी जी डेफिनेशन भी है। वैसे तो ये तुसी आर एफ की जे एक डेफिनेशन याद रख लोगे तो उस दे विच तुहानू सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा। जे आप मिनीमम लेंथ ऑफ दी स्केल कड्ढनी है तो आर एफ मल्टीप्लाई बाय मैक्सीमम लेंथ, मतलब आर एफ की हुंदा वा LOD और LOS डिवाइडेड बाय AL और ML। ठीक है, तो मैं तुहानू दस चुके हैं कि LOD की है लेंथ ऑफ ड्राइंग। फिर मैं एक वर्ड लिख देना थोड़े लिए, लेंथ ऑफ ड्राइंग। LOS इज दी लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है जी, नेक्स्ट जेड़ा AL इज द एक्चुअल लेंथ, is the actual length and ML is the maximum length। ठीक है, ये अपने को चीज़ां जड़ियां इहदियां एब्रीवेशंस ने आर एफ दियां वो जरूर याद करके तुसी रखनी है। ठीक है, नैक्सट अपने को क्वेश्चन आ गए हाउ टू कैलकुलेट दी आर एफ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो भी आप प्लेन या डायगनल स्केल नू कंस्ट्रक्ट करना तो वो तो पहला आपां नू आर एफ या तो तुहानू क्वेश्चंस दे विच दिता होगा। जे क्वेश्चंस दे विच आर एफ नहीं दिता तो तुहानू कैलकुलेट करना पैना। ठीक है, वैसे आर एफ दिता ही हुंदा मैक्सीमम क्वेश्चंस दे विच, जे नहीं भी दिता तो तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। वो किवें कैलकुलेट करना वो मैं तुहानू दस देना किवें कैलकुलेट करना। Find the RF if 20 किलोमीटर is represented by 20 सेंटीमीटर। ये की कह रहा है कि जड़ा 20 किलोमीटर डिस्टेंस, हुण 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो गया तुसी ये देख लो। ठीक है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस इज अ बिग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। हुण अपने को एडा जड़ा स्केल आ वो भी 30 सेंटीमीटर का हुंदा, आपां 20 सेंटीमीटर ईजीली उसनू जड़ा 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ आपां ईजीली शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी मैं मैप वाली एग्जाम्पल दी सी कि जड़ा 1 इंच अपने पेज से आप जब मेजर करांगे तो वो किया 1000 किलोमीटर नू रिप्रेजेंट करूगा। ठीक है, आपां किया इत्थे 20 किलोमीटर डिस्टेंस दिता होया, आपां उन्होंने शो करना वा 20 सेंटीमीटर। तो आर एफ की हो गया, आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ इत्थे आपां स्केल भी लिख सकते हैं या एक्चुअल लेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को जड़ा आर एफ कैलकुलेट करने लई आपां की है लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी है
या लेंथ ऑफ स्केल कितनी है अपने को, स्केल की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, आप इत्थे लिख लेने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जी मैक्सिमम लेंथ की होगी 20 किलोमीटर इज द बिग लेंथ, सो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ। आप 20 किलोमीटर नीचे लिख लेने हैं। तो आप हुण कन्वर्ट यूनिट्स विल बी सेम, तो यूनिट्स भी सेम करना पैना। तो अपने को स्केल तो अवेलेबल 20 सेंटीमीटर का ही है, तो आप जी किलोमीटर नूं सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करांगे। ठीक है जी, तो इनू आप जिहड़े किलोमीटर्स है 1000 किलोमीटर हो गए, ये मीटर्स दे विच कन्वर्ट हो गया। फिर इनू सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करन लई आप मीटर्स नूं 100 नाल फिर मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, आ 20 नाल 20 कैंसल हो गया, तो अपने कोल की बच गया 1:10⁵ सो जी अपनी रेशो आ गई 1:10⁵ आ गई। तो ये की बन गया एक रिड्यूसिंग स्केल दी एग्जाम्पल अपने को आ गई। ठीक है, तो आप इतों की है RF कट लिया। आपको जस्ट एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी भी छोटी डायमेंशन है उन्होंने ऊपर रखना। तो इत्थे की है जोड़ा किलोमीटर्स है इत्थे सेंटीमीटर्स हो गए, आ सेंटीमीटर ना कैंसल हो गया। इतों ये भी क्लीयर हो गया जोड़ा RF है वो यूनिट लैस है, डायमेंशन लैस है। ठीक है, इट इज अ रेशो ऑलवेज यूनिट लैस ते डायमेंशन लैस होंगी है। ठीक है, ये भी याद रखना है तुसी कि RF एक यूनिट लैस, डायमेंशन लैस एंड इट इज द रेशो। नेक्स्ट एक होर एग्जांपल ले लेने, फाइंड द RF इफ 0.5 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। हुण आधा किलोमीटर नूं आपां की करना वा 1 सेंटीमीटर स्केल दे उत्ते शो करना। फॉर एग्जांपल आपां RF कढनी है, RF इत्थे लिखिया लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाय एक्चुअल और मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो आपां की कीता जिहड़ी लेंथ ऑफ स्केल कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी है 0.5 किलोमीटर। तो आपां की करांगे 5 यदि डेसिमल ऊपर आ गया 10 ते किलोमीटर्स नूं आपां सेंटीमीटर्स दे विच कन्वर्ट करांगे। ठीक है, तो अपने को सेंटीमीटर्स दे विच कन्वर्ट हो गया, आ एक 0 नाल 0 कटिया गया, तो ये आ गया 1:50,000। ठीक है, तो ये अपने को की आ गई RF आ गई। तो इत्थे जिहड़ा सेंटीमीटर है सेंटीमीटर नाल कैंसल हो जाऊगा। तो इथों की अपना जिहड़ा की है मेन टॉपिक जिहड़ा सीगा स्केल्स दे उत्ते अज आपां डिस्कस जिहड़ा कीता ओह आपां स्केल्स दे बारे डिस्कस किया। ठीक है, उस दे विच आपां टाइप्स ऑफ स्केल्स नूं डिस्कस किया, जिवें प्लेन स्केल ते डायगोनल स्केल जिहड़े अपने नैक्सट लैक्चर दे विच नाले तां तुहानूं मैं ड्राइंग शीट ते ड्रॉ करना सिखा दांगे, ते नाले उन्हां दीयां कैलकुलेशनस वगैरह जिहड़ियां होणगीआं ओह आपां जरूर उहदे विच देखांगे। इस दे विच आपां 3 तरह दे अज आपां यूनिट्स पढ़े ने, 2 टाइप्स के यूनिट्स पढ़े हैं, मैट्रिक सिस्टम ते ब्रिटिश सिस्टम। उन्हां दीयां कन्वर्जनस देखियां ने, ते RF दे अकॉर्डिंग जिहड़े 3 स्केल्स ने रिड्यूसिंग, लार्ज ते फुल साइज स्केल वो आपां देखे ने। ठीक है, इसनूं तुसीं अपने चंगी तरह मतलब ये लैक्चर नूं थॉरोली रिवाइज्ड कर लेना कि जदों भी मैं नैक्सट अपना लैक्चर नंबर 5 आऊगा तो तुहानूं डिफिकल्टी ना आवे। सो ये लैक्चर नूं आपां इत्थे खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।